السلام علیکم، میں ہوں آرزو شبرا۔ آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے اوپر۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہکتا عشق، ایپیسوڈ نمبر 41، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ بائی سیما شاہد۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچیں۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ مہکتا عشق۔ علینا کی جہاں دیدہ نگاہیں سب بھاپ چکی تھی اور اب وہ شرارت سے گنگناتے ہوئے ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ دوسری جانب منسا شوق سی اپنے مہندی لگے پیروں میں جگمگاتی ہوئی باریک سی پائل کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کب اور کس طرح اس کے پیروں میں آئی؟ زرار؟ اس کا چہرہ لہو رنگ ہوا تھا کہ اس کے علاوہ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی۔ یقیناً وہ رات میں آیا تھا اور اسے بیڈ پر بھی اسی نے لٹایا ہوگا۔ وہ سوچ سوچ کر پسینے پسینے ہو رہی تھی۔ بھانجی؟ اس کی غائب دماغی کو نوٹ کر کے علینا نے گنگنانا ختم کر کے اس کا کندھا ہلایا۔ جی خالہ، وہ ہوش میں آئی۔ جلدی سے ناشتہ ختم کرو، پھر شام کی تیاری بھی کرنی ہے، 12 تو بج ہی چکے ہیں، وقت بہت کم ہے۔ علینا نے پلیٹ میں لوازمات ڈال کر اسے تھمائے۔ کچھ ہی دیر میں منسا کی امی اور موری بھی کمرے میں آ چکی تھی۔ کمرے میں منسا کے ساتھ تینوں خواتین نے بیٹھ کر پہلے سورہ یاسین شریف پڑھ کر اس کی آنے والی زندگی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ منسا، دعا مانگنے کے بعد مورے نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا۔ اللہ نے تمہارے لیے ایک بہترین شریک سفر چنا ہے جو ہر لحاظ سے ایک مضبوط قوت ارادی والا مکمل مرد ہے، جو کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ اب تم نے اس رشتے کو نبھانا ہے، اپنے شوہر، اپنی ساس، دیور، نند، سب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یاد رکھنا، عزت ہوگی تو عزت ملے گی، اور عزت کمانی پڑتی ہے، پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی۔ مورے اپنے تجربے سے اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ رکھ رکھاؤ والی خاندانی خاتون تھی جن کے نزدیک خاندان کو جوڑے رکھنا کسی بھی رشتے کی اہم اساس ہوتی ہے۔ جی مورے۔ منسا نے نظر جھکا کر ادب سے حامی بھری۔ باسط تمہارا ماضی تھا، اسے کبھی بھی نئے رشتے کے بیچ نہ لانا۔ مرد اپنی بیوی کے منہ سے کسی غیر کا نام تک سننا پسند نہیں کرتے۔ مورے سنجیدگی سے بولی۔ مورے، کیا شاندانہ باجی شادی میں شرکت نہیں کریں گی؟ علینا نے گفتگو کے بیچ میں سنجیدگی سے سوال کیا۔ شاندانہ کے بارے میں تو کچھ نہ پوچھو، بھلا رشتوں میں کوئی اتنی کڑواہٹ بڑھتا ہے جتنی اس نے بھر دی۔ پرسوں اطلاع کروا دی تھی، شادی کا بلاوا بھی بھجوا دیا تھا، مگر اس کا تو دماغ خراب ہوا پڑا ہے، سنا لاہور چلی گئی ہے۔ مورے بھی بھری بیٹھی تھی کہ شاندانہ اس گھر کی بیٹی تھی۔ مورے نے اپنی سوتن کی بیٹی کو سگی بیٹی کی طرح پالا تھا، کبھی سگے سوتیلے رشتوں کی تفریق نہ کی تھی، اسی لیے ان کا دل شاندانہ کی طرف سے بہت دکھا ہوا تھا۔ وہ منسا کی اکلوتی پھوپھو تھی اور ان کا شریک نہ ہونا کئی سوالات کھڑا کرنے والا تھا، پر شاندانہ کا کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو بس منسا سے انتقام لینے کے لیے اندھی ہو رہی تھی۔ آصف خانہ کی وسیع عریض حویلی اس وقت بقائے نور بنی ہوئی تھی۔ جلدی کرتے کرتے بھی مغرب ہو چکی تھی۔ علینا تو منسا کی طرف سے شریک ہو رہی تھی، پر آصف خانہ، ان کے دونوں بڑے بھائی، بھاوجے، ان کے بچے سب بارات لے کر جانے کے لیے تیار تھے۔ پرپل کلر کے خوبصورت علاقائی کام والے شرارے سوٹ میں فرینہ کندن کی طرح چمک رہی تھی، اور آتکا کی تو چھپی نرالی تھی۔ ان کے لاڈلے بیٹے کی اسکاٹ لینڈ کے لاڈ کی شادی تھی، وہ بھی اس لڑکی سے جسے ان کے مرحوم شوہر نے اپنے لاڈلے ولی عہد کے لیے چنا تھا۔ وہ بے پناہ خوش تھی، ڈائمنڈ کی جویلری پہنے اسکن اور کاپر کلر کے کمبینیشن کی ساڑی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چہرے پہ مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک۔ زرار کی شادی ان کا دیرینہ خواب تھا جو آج پایا تکمیل کو پہنچا تھا۔ تیار ہو کر وہ بڑے کمرے میں آئی جہاں سب زرار کو گھیرے میں لیے مختلف رسمیں کر رہی تھی۔ فوٹو سیشنز ہو رہے تھے۔ روایتی راؤ سلک سفید گولڈن مکس کلر کی قمیض شلوار سوٹ پر واسکٹ، پیروں میں پشاوری چپل، گلے میں گلاب کے پھولوں کے ہار۔ لارڈ زرار ہمدانی بلا کا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اس کے مردانہ وجہ چہرے پہ کچھ پا لینے کی خوشی صاف جھلک رہی تھی۔
वो जो हमेशा संजीदा रहता था, आज उसके अनाबी लबों पर धीमी मुस्कुराहट थी। चलो भाई, हम पहले ही बहुत लेट हो गए, मगरिब होने वाली है, जल्दी करो। आसिफ खाना ने सबको खड़ा किया। बारात तैयार थी और दुल्हन को लेने के लिए धूमधाम से निकल गई। शादी भरपूर रिवायती माहौल में हो रही थी। बाहर ढोल बजाने वाले आ चुके थे। बड़ा सा पंडाल बारात की आमद के लिए सजाया गया था। पीछे बड़े से मैदान में कनाते लगाकर बावर्ची अपनी तैयारियां शुरू कर चुके थे। दम पुख के लिए सालम दुम्बे सीखों में परोए जा रहे थे। तरह तरह के पकवानों की तैयारी की जा रही थी। मसालों की गोश्त भुने जाने की इश्तहा अंगेज खुशबू फिजा में फैल रही थी। खानदान की खवातीन तैयार होकर पंडाल में जमा रही थी, जहां खवातीन और मर्दों के लिए अलहदा अलहदा इंतज़ाम किया गया था। शाम होते ही पंडाल के बाहर लकड़ियां सुलगाकर आग भड़का दी गई थी कि बारात का इस्तकबाल रिवायती तरीके से करना था। दूर से हवाई फायरिंग की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। बारात आ गई थी। बारात के नज़दीक पहुंचते ही ढोल पर थाप तेज़ हो गई और पुरजोश से कबीले के जवान हाथों में चमकती तलवारें लिए आग के दायरे के गिर्द जमा होना शुरू हो गए। सफ़ेद घेर वाली फ्रॉक नुमा कमीज शलवार पहने, हाथों में तलवार लिए सभी जवान बड़े जोश से खटक डांस पेश करने के लिए तैयार थे। बारात के करीब आने पर रिजवी साहब के साथ इलाके के मुअज़्ज़िज़ अफराद ने उनका इस्तकबाल किया और सब जवान एक दायरे में खड़े होकर हाथों में तेज़ चमकदार तलवारें, दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में ढाल, कुछ के दोनों हाथों में ढाल की जगह तलवारें थी, पकड़े हुए थे। दायरे के बीच में चलने वाली आग के शोलों के नज़दीक ढोल बजाने वाले खड़े ढोल बजा रहे थे और दायरे में खड़े नौजवान तलवारों की चमक दिखाकर अपनी जगह पर घूमना शुरू कर चुके थे। सभी जोशो खरोश के आलम में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे थे, इलाकाई गाना गा रहे थे। अरहम एराज दोनों भाई आसिफ खाना के साथ इस रक्स में शामिल हो चुके थे। ये सब बहुत अच्छा है, अरहम ने तारीफ़ की। यह हमारा रिवाज है। उम्मीद है तुम दोनों भाई इसे अच्छी तरह समझोगे और एंजॉय करोगे। आसिफ खाना ने आगे चलते हुए अरहम एराज दोनों को मुखातिब किया। बिल्कुल, इट्स सो मच फैसिनेटिंग, एराज ने कहा। काफ़ी धूम धड़के के बाद ज़रार हमदानी को तलवारों की छाँव में अंदर सजे पंडाल में लाया गया। अलीना खाला की तो आज खुशी का कोई आलम ही नहीं था। उनकी माँ जैसी बड़ी बहन की इकलौती बेटी की शादी थी, उनकी इकलौती भांजी की, वो भी उनके पसंद किए हुए लड़के से। वो इस वक्त भारी भरकम आसानी और फ़िरोज़ी कॉम्बिनेशन का गरारा सूट पहने, दोनों हाथों में मेहंदी लगाए, बालों में मोती के फूल सजाए, ख़ुद भी किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी और बड़े फ़ख्र से सबसे अपनी तारीफ़ें बटोर रही थी। बारात आने का शोर मचने पर वो मनसा के कमरे में आए, जहाँ ब्यूटिशियन उसे मुकम्मल तैयार कर दिया था। खूबसूरत रिवायती सुर्ख सुहाग का लिबास, मैचिंग ज्वेलरी, मेकअप, चूड़ियों और फूलों से भरी नाजुक हिनाई कलाइयाँ, उसके हाथों पैरों में मेहंदी का रंग बहुत गहरा आया था। इस दुल्हनापे की सज धज ने मनसा को एक अलवाही सा रूप अता किया था। वो सादा सी लड़की इस वक्त बेपनाह हसीन लग रही थी। माशाल्लाह, बहुत रूप आया है। अलीना ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाया। मेरी भांजी जैसी हसीन और जमील दुल्हन इस रूए ज़मीन पर आज कोई नहीं होगी। उन्होंने तारीफ़ करते हुए बेख्तियार उसकी गाल पर प्यार किया। खाला, मनसा ने अपनी नम हथेलियों को मसला। हाँ भांजी। खाला, मुझे डर लग रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। डर किसका? ज़रार का? अलीना ने शरारत से पूछा। अगर कहीं वो अफरीदी आ गया तो? मनसा ने लब खींची। अस्तगफिरुल्लाह, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। मैं समझी हमारी नाजुक सी कम उम्र बनो शादी से डर रही हैं। दूल्हा मियाँ की वारफतकियों का तन्हाई में पहली मुलाकात का सोच कर डरी हैं, और यहाँ तो मामला ही कुछ और है। आप बताओ भला, मैं तसल्ली दिलासे वाला अपना लेक्चर किसे दूँ? अलीना ने उसे आंखें दिखाई। उनकी बातें सुनकर कमरे में मौजूद सारी कज़न्स लड़कियां हंस पड़ी थी और मनसा के चेहरे पर लहू छलकने लगा। वो अपने सुर्ख लब दांतें तले दबाकर सर झुका गई। डरो मत, कुछ नहीं होगा, ज़रा रहे ना, वो सब संभालेगा। तुम बस एतमाद से नीचे चलो और अपनी शादी के फंक्शन को एंजॉय करो कि ये वक्त फिर नहीं आएगा। अलीना संजीदा हुई। नीचे से पैगाम आ चुका था। बारात को पंडाल में बिठाया जा चुका था और अब मनसा को बुलवाया जा रहा था। अलीना के कहने पर ब्यूटिशियन ने मनसा का घूंघट निकाल दिया और अब लड़कियों के झरमट में से नीचे पंडाल में सजे स्टेज पर ले जाया जा रहा था। पंडाल में दुल्हन के दाखिल होते ही सब अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो गए। सबकी नज़रों का मरकज़ घूंघट में छुपी हुई दुल्हन थी। वो आहिस्ते से लड़कियों के झुरमट में चलती हुई स्टेज के नज़दीक आई।
जहाँ सामने स्टेज पर पुरतमाद अंदाज में ज़रार आंखों में बेपनाह चमक लिए खड़ा था। उसके नज़दीक आते ही ज़रार ने आगे बढ़कर अपना मजबूत हाथ घूंघट में छुपी मनसा के आगे फैलाया। अलीना ने मुस्कुराते हुए मनसा का चूड़ियों, गजरों और मेहंदी से सजा नाजुक हाथ ज़रार की हथेली पर रखा, जिसे उसने किसी कीमती मता की तरह अपनी गिरफ्त में लिया और उसे ऊपर चढ़ने में मदद की। ऊपर मनसा को ज़रार के साथ उसके पहलू में बिठा दिया गया। अलीना आंटी, भाभी का चेहरा तो दिखा दे, एहराज ने फरमाइश की। हमारे यहाँ रस्म है कि दुल्हन का घूंघट सिर्फ दूल्हा खोलता है। अब ज़रार साहब पर है, वो अपनी दुल्हन की रुनुमाई इधर सबके सामने करना चाहेंगे या? मायनी खेजी से अलीना ने अपनी बात ख़त्म की। लॉर्ड ज़रार हमदानी के लिए पाकिस्तान, ये कबायली रस्म व रिवाज, ये सब नया था और वो इस सब को खूब एंजॉय कर रहा था। अपनी बीवी को मलकियत समझना, उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी निगाह में रखना, ये सब उसे अट्रैक्ट कर रहा था। वो जो पहले ही मनसा को लेकर ठीक ठाक पॉसेसिव था, अब तो मज़ीद हो गया। क्यों लॉर्ड साहब अपनी दुल्हन का घूंघट नहीं उठाएंगे, उसका दीदार नहीं करेंगे? अलीना की आवाज़ सुनकर वो चौंका। उसने साथ बैठी मनसा पर एक गहरी नज़र डाली, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर दूधियाँ हाथों पर मेहंदी, गजरे अजब पहाड़ का सा मंजर पेश कर रहे थे। वो घबरा रही थी। उसका लरसता कांपता वजूद, गहरे सांस की आवाज़ें, बेख्तियार उसे तसल्ली देने की खातिर वो सबकी मौजूदगी में उसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में ले चुका था। मेरी ही मिल्कियत है ये, जल्दी क्या है, आराम से घर जाकर उन्हें देखूंगा। उसका जवाब सुनकर एक शोर सा मच गया। ओए होए, अलीना ने उसे छेड़ा था। सुकून से बैठिए, मैं हूँ ना आपके पास। ज़रार ने मनसे के कान में तसल्ली दी, जिसे सुनकर वो और भी सिमट सी गई। कुछ देर बाद आरसी मसहफ की रस्म के लिए एक बड़ा सा आईना लाया गया। अब दूल्हे को दुल्हन का चेहरा इस आईने में देखना था। ज़रार, इधर सामने आकर बैठो। आतका ने मनसा के सामने कुर्सी रखवाई। अब वो दोनों आमने सामने थे। बीच में मेज़ थी, जिस पर बड़ा सा गोल आईना रखा गया था। फिर इन दोनों के ऊपर बड़ी सी सुर्ख चादर डाल दी गई। दुल्हन बनी मनसा का खूबसूरत दिलकश रंगों से सजा चेहरा उसके सामने था। झुकी नजरें, माथे पर टीका, सुर्ख लरसते कांपते हुए होंठ की लर्जिश, इन होंठों को छूती हुई वो जालिम नत, ये सजा सवरा रूप सिर्फ और सिर्फ उसके लिए था। एक तफाखुर का सा एहसास ज़रार की रग रग में उभरा था। आरसी मसहफ की रस्म के बाद सलामी का सिलसिला शुरू हो गया। बड़ों की स्टेज पर आके रस्में करने के बाद अब यंग जनरेशन अलीना खाला की निगरानी में स्टेज पर आ गई। फरीना, ज़रा अपने भाई का जूता तो उतार के दिखाओ। बड़े आराम से सोफे पर बैठकर अलीना ने फरीना को हुक्म दिया, जिसके लिए पाकिस्तानी शादी बिल्कुल नया माहौल, नई रस्में थी। वह इस बात में सर हिलाकर अपना शरारा संभालती स्टेज पर आई। भाई, शूज़ दीजिएगा। उसकी बात सुनकर ज़रार ने उसे घूरा। फरीना, इतने लोगों में कौन शूज़ उतारते हैं? अलीना आंटी ने आपके शूज़ मांगे। वो सादगी से बोली तो एक शोर मच गया। ज़रार भाई, हरगिज़ भी जूता मत देना, लुट जाओगे। फरीना, जल्दी से जूता लाओ। शोर शराबे में कंफ्यूज सी फरीना नीचे झुकी और तेज़ी से एक के बजाय ज़रार के दोनों जूते उतारकर अलीना के पास ले आई। जाओ लड़कियां, अब अपने दूल्हे भाई से 5 लाख जूते के मांगो, आधे मेरे और आधे तुम सबके। वो डॉन बनी सबको हुक्म दे रही थी। अल्लाह अल्लाह करके ज़रार की जान जूता छुपाई से छूटी तो मुस्कुराती हुई अलीना दूध के गिलास में बादाम पिस्ते डाले उसके सामने खड़ी थी। मैं दूध नहीं पीता। ज़रार ने तो देखते इनकार कर दिया। मत पियो। वो कंधे उचकाकर दूध का गिलास मनसा के सिमत ले आए। लो भांजी, अब ये सारा गिलास तुमने खाली करके अपने लिपस्टिक खराब करनी है। उन्होंने बाआवाज़ बुलंद कहते हुए मनसा का घूंघट उठाना चाहा। लाइए, दीजिए। ज़रार ने संजीदगी से उनके हाथों से गिलास पकड़ लिया, जिस पर सबने खूब हल्ला गुल्ला मचाया। काफ़ी रस्मों के बाद खाना खोल दिया गया। दूल्हा और दुल्हन के लिए स्टेज पर ही खाना लगवाया गया, पर ज़रार एक्सक्यूज़ करके मर्दाने में चला गया। मनसा ने बामुश्किल थोड़ा बहुत ही खाया था। खाने के बाद रुखसती का शोर मच गया। बारात ने रुखसत होकर आसिफ खाना की हवेली जाना था, जो ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए ये तय पाया कि पूरे गाँव का चक्कर लगाकर बारात हवेली जाएगी। रुखसती की घड़ियाँ करीब आ रही थी। मनसा के हाथ पैर फूलने लगे, आंखों में आंसू उतरने लगे। वह अब पराई हुए जा रही थी। मैका छूटने लगा था। मनसा की अम्मी ने प्यार से उसका माथा चूमकर एक बड़ी सी चादर उसे उड़ा दी। अपने बाबा और चचा के साए और मोरे और अम्मी की दुआएं समेटे वह आस्तीकी से कदम उठा रही थी। बाहर खड़ी आसिफ खाना की सजी हुई गाड़ी मौजूद थी। ज़्यादा मत रोना, मेकअप खराब हो गया तो ज़रार बेचारा, जो इतने अरमानों से अपनी दुल्हन को सुकून से देखना चाहता है, कहीं डर ना जाए। अलीना ने उसके गले लगते हुए सरगोशी की।
आओ बेटी। आतका ने आगे बढ़कर प्यार से उसे अपने बाजुओं के हिसार में लिया और एहतियात से उससे सजी हुई गाड़ी में पिछली सीट पर बिठाकर खुद भी उसके साथ बैठ गई। अलीना खाला दूसरी साइड का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई कि मनसा उन दोनों खवातीन के दरमियान में छुप सी गई। आगे आसिफ खाना ने ड्राइविंग सीट संभाली और ज़रार उनके साथ फ्रंट सीट पर बैठा। ये कबायली इलाका था जहाँ रस्म व रिवाज को बहुत अहमियत हासिल थी, इसलिए ज़रार ने खुद बड़ों के एहतराम में मनसा के साथ बैठना मुनासिब नहीं समझा। पीछे वाली गाड़ियों में अरहम, एहराज और फरीना शामिल थे। अंधेरे में पूरे गांव का चक्कर लगाना सेफ नहीं है, मेरे ख्याल से हमें सीधा हवेली चलना चाहिए। आसिफ खाना ने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले संजीदगी से अपनी बात कही। पर गांव में ऐलान हो चुका है, अब अगर नहीं गए तो बात खराब होगी। कई लोग अपने दरवाजे पर बारात देखने का इंतजार कर रहे हैं और मैंने तो सबके लिए छुआरे, अखरोट और मेवे जात की थैलियाँ पैक कराई थी कि रास्ते में बांटेंगे। आतका परेशान हुई। अलीना, आप अरहम एहराज के साथ गांव का चक्कर लगा लें, किसी को क्या पता गाड़ी में कौन है। बाकी मेवे वगैरह मैं गार्ड्स को कह देता हूँ, वो बांट देंगे और हम सब हवेली चलते हैं। आसिफ खाना ने हल निकाला। ठीक है। अलीना इस बात में सर हिलाकर गाड़ी से नीचे उतर गई। बारात की गाड़ियाँ गार्ड्स के साथ गाँव का चक्कर लगाने निकल गई थी और आसिफ खाना ने गाड़ी हवेली की सिमत टाल दी। वो किसी भी कीमत पर ज़रार और मनसा को लेकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। हवेली ज़्यादा दूर नहीं थी, वो सुरमई पहाड़ी के पास से गुजर रही थी जब उनकी गाड़ी के टायर पर फायर हुआ। गाड़ी डगमगाई थी। आसिफ खाना तेज़ी से गाड़ी निकाल लेना चाहते थे, पर 4 गाड़ियों ने घेर कर उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। ज़रा गाड़ी लॉक करो, आसिफ खान चिल्लाए। आप खवातीन जल्दी से सीट में नीचे झुककर छुप जाएं। आसिफ खाना तेज़ी से बोलकर अपना सेल फोन निकालने लगे थे कि गाड़ी के विंड स्क्रीन को ज़ोरदार हथौड़ा मारकर तोड़ दिया गया। सामने अफरीदी अपने साथ 5 मसल्ला अफराद लिए बड़े क्रोफर से हाथ में गन पकड़े खड़ा था। हे, तुम बाहर निकलो, उसने ज़रार को मुखातिब किया। ज़रार दरवाज़ा खोलकर निकलने ही लगा था कि पीछे से मनसा का लरसता कांपता हुआ हिनाई हाथ उसके बाजू पर आकर रुका था। उसने पलट कर देखा। चादर में छुपी मनसा की सिर्फ आंखें नजर आई थी, जिनमें डर बसा हुआ था, एक खौफ सा था। वो आंसुओं से भरी आंखों में उसे रोकने की इल्तिजा लिए उसका ज़ब्त आजमा रही थी। ज़रार ने संजीदगी से अपने बाजू पर रखे उसके हाथ को देखा, फिर आहिस्तेगी से उसका हाथ हटाकर नीचे उतरा। मैं यही हूँ, तुम खवातीन को जाने दो, वो बला की संजीदगी से बोला। खवातीन पर हम हाथ उठाते भी नहीं। अफरीदी ने गन ज़रार के दिल के मकाम पर रखी। ज़र, ज़मीन और जन हमेशा से फसाद की जड़ रही है। इस लड़की को हासिल करने के लिए मैंने अपने भतीजे को नहीं बख्शा। तो तुम क्या चीज़ हो? वो हंसा। तुम्हें मार दूंगा, ये बेवा हो जाएगी, फिर इससे निकाह करके अपनी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी करूंगा। वो खबासत से अपना प्लान बता रहा था। यू बास्टर्ड। ज़रार ने अचानक से पैंतरा बदलकर आफरीदी पर वार किया तो वह लड़खड़ाता हुआ पीछे हटते हुए फायर खोल गया। ज़रार! आसिफ खान जोर से चीखते हुए अपनी गन निकालते नीचे उतरे, जहाँ वो खून में लथपथ ज़मीन पर पड़ा था। मनसा और आतका दोनों जोर से चीखी। मनसा का दिल बंद होने के करीब हो गया था। वही हुआ था जिसका उसे डर था। पहले बासित और अब ज़रार। वो रोने लगी। फायर की आवाज़ सुनकर जो गाड़ियाँ गांव के लिए निकल रही थी, सबने अपना रुख आवाज़ की सिम कर लिया। गाड़ियों की आहट सुनकर आफरीदी ने अपने साथियों को निकलने का इशारा किया। मेरी अमानत को वापस ले जा आसिफ खाना, इद्दत के बाद मैं बारात लाऊंगा उसकी। वो खुद भी तेज़ी से बोलता हुआ अपने साथियों के साथ गायब हो गया। ज़रार! आसिफ खाना ने ज़मीन पर गिरे ज़रार का सर अपने ज़ानों पर रखा, जिसके सीने से खून तेज़ी से चला जा रहा था। मनसा और आतका दोनों गाड़ी से नीचे उतर आए। आतका माँ थी, उनके कलेजे पर हाथ पड़ा था, और मनसा, वो तो बस फटी पड़ी आंखों से ज़रार को देखे चले जा रही थी। जारी है।